38. Okay, so let us just recapitulate the last part, the phototransduction, which is also asked as photochemistry of vision. Now, first of all, you have to remember that the resting membrane potential of rod of the photoreceptors in general, rods and cones, is minus 40 millivolts. At this resting membrane potential, you know it is less than the, not less, it is more than that of the neurons. Neurons is minus 70. Minus 40 is because of leaky sodium channels which are present in the outer segment. Now, when the light photons arrive, they fall on the photochemical pigments which are present in the outer segment. The rhodopsin gets converted into a number of intermediate chemical molecules: martha-rhodopsin, lumirhodopsin, meta-rhodopsin 1, meta-rhodopsin 2. Meta-rhodopsin 2 is the active rhodopsin, and that is what is required to initiate the subsequent chain of reaction. This meta-rhodopsin 2, it will activate this transducin, which is the G protein. The transducin will activate phosphodiesterase enzyme, and the phosphodiesterase enzyme subsequently catalyzes the lysis, or you can say the conversion of cyclic GMP into GMP. Now this cyclic GMP is important because in dark condition, when there is no light, cyclic GMP is basically keeping the sodium channel open. Leaky sodium channels are kept open or are kept leaky by the cyclic GMP, which is present on the cytoplasmic side of the membrane. But when this cyclic GMP is degraded, what will happen subsequently, that the sodium ions, this channel will close and the sodium ions stop entering inside. So the minus 40 millivolts under light conditions will start decreasing. The minus 40 millivolts will start decreasing further. Why? Because the positive ions are not entering, and in the inner segment, you can see here continuously the sodium potassium pump and this potassium channels, they are leaking outside, and the sodium potassium pump is continuously active. So this is what is happening. Now this is the chain of reaction which we already saw in the last lecture. A few important things: amplification. The reaction is amplified at each step, meaning that if there is a single light photon, doesn't mean that there is a single meta-rhodopsin 2, and doesn't mean that only one particular sodium channel will be closed. There are for a single photon of light, there will be lot of activated meta-rhodopsin 2, and that will lead to closure of lot many sodium channels. तो रिएक्शन एम्पलीफाई हो रहा है हर एक स्टेप पे, और इसी की वजह से यदि हम रॉड और कोन की बात करें कि हाउ दे आर डिफरेंट, तो इन रॉड द एम्पलीफिकेशन अकर्स वेरी मच. रॉड में एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा लाइट फोटोन जब व्हेन द लाइट फोटोन्स आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट. यदि एक या दो फोटोन के लाइट्स भी आ जाए कहीं से, मतलब अंधेरे में या कहीं पे एक कोई प्रकाश का किरण दिख जाए या फिर लाइट थोड़ा दिख जाए, तो रॉड्स विल बी इजीली एबल टू पिक इट अप. वर्सेस कोन्स आर नॉट दैट सेंसिटिव. Here you have to understand that the sensitivity of cones is only 330 to 300 times. I'll just explain you this. This sentence may look to be confusing, but I'll explain you what happens. That rods are more sensitive under dark conditions because this cascade will amplify the effect of a single light photon. So within a second, rhodopsin kinase. Okay. So now, once the meta-rhodopsin 2 is activated, meta-rhodopsin 2 को inactivate करना होता है ताकि ये like you know it automatically gets degraded by rhodopsin kinase. ये rhodopsin kinase नाम का एक दूसरा एंजाइम रहता है जो एक्टिवेटेड meta-rhodopsin 2, क्योंकि meta-rhodopsin 2 का काम हो गया,
तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो रोडोप्सिन काइनेज करके एक एंजाइम है जो उसको डिग्रेड करती है. So what will happen because of this metarhodopsin 2 will be degraded, it will become scotopsin. Scotopsin फिर वापस मेटारोडोप्सिन 2 is broken down into scotopsin all transretinal. मेटारोडोप्सिन 2 को रोडोप्सिन काइनेज स्कोटॉप्सिन और ऑल ट्रांसरेटाइनल में कन्वर्ट करती है. ये स्कोटॉप्सिन जो है ये इस तरफ वापस साइकिल में जाएगा, लेकिन ये ऑल ट्रांसरेटाइनल है, ट्रांस को सिस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी सिस जो फॉर्म है रेटाइनल का, रेटाइनल और रेटाइनॉल, इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए. So that retinol will bind with scotopsin only if the retinol is in the cis configuration. तो ये दोनों मिल के फिर वापस रोडोप्सिन बनेगा. And that is the physiology of dark adaptation which I will be explaining in a while. तो ये पूरा एक साइकिल है. तो रोडोप्सिन काइनेज यहाँ पे है, रोडोप्सिन काइनेज सिस को ब्रेक करेगा और फिर जाके ये वापस सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. There is this enzyme isomerase, retinal isomerase, and the rhodopsin is formed. So this cycle is happening. Now regarding this sentence, just ignore it for a while, I shall bring you back to that. The most important thing, receptor potential जो भी जनरेट होता है, जैसे कि hyperpolarization rod का होगा, which is proportional to the logarithm of light intensity. So receptor potential is proportional to the logarithm of light intensity. So which rule is this? You can reply me in the chat. What rule was this? I explained you there was some rule which was associated with that. Weber-Fechner law. Yes, Weber-Fechner law. So just remember that law. Now the another thing is that in the last lecture I showed you one slide and I wanted to make some correction. तो ये correction ये है इस slide में कि मैंने बताया था कि rod hyperpolarize होगा और rod hyperpolarize होने के बाद subsequent reaction होते हैं. अभी उसमें correction ये है कि see at the basal resting membrane potential of rod which is minus 40 millivolts. At the basal resting membrane state with a potential of minus 40, under dark conditions, rod and the other photoreceptor as well, cones also, they will continuously release glutamate. Glutamate is the neurotransmitter being released by rods and cones. They will continuously release this glutamate under dark conditions when there is no light. When the rod gets hyperpolarized, the glutamate release will decrease. The amount of hyperpolarization or the electrotonic potential produced will depend upon the amount of light. अभी मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि ये जो ब्लैक बार है that is absence of light. This black bar is being projected on this rod, so there is no light, so it is under dark. It is minus 40 millivolt is the resting potential, and a good amount of glutamate is released. You can see good amount of glutamate is released. Compared to this, this is white bar which is full light, you can say. So the rod will be hyperpolarized to maximum. minus 40 का जाके minus 70 उसका maximum electrotonic potential achieve होगा. तो glutamate release कम होके बंद हो जाएगा. The glutamate release will stop. So this is white light and this is what is happening. In between black और white के बीच में जितना gradation है light का, जैसे यहाँ पे light थोड़ा है, यहाँ पे light उससे ज़्यादा है, and here there is more light compared to all this, and this is full white light. So with increasing amount of light between black and white, black से हम जैसे जैसे थोड़ा light बढ़ेगा तब hyperpolarization का amplitude minus 40 का minus 50 होगा, minus 50 का minus 60 होगा और minus 60 का minus 65 होगा. और साथ ही जो ग्लूटामेट रिलीज है
वो कम होता जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे -40 पे इतना ग्लूटामेट है, -50 पे इट इज दिस मच, -40 पे सॉरी -60 पे दैट इज मोर द हाइपर पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये थोड़ा एक आपको समझना होगा, ये बाकी सेंसरी सिस्टम से अलग चलेगा। जितना ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगा, ग्लूटामेट का रिलीज उतना कम हो जाएगा। द मोर द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर, द मोर द ग्लूटामेट रिलीज विल डिक्रीज, मतलब कि द लेस ग्लूटामेट विल बी रिलीज। More hyperpolarization, less glutamate. So you can see this. I will bring you to this slide again and again because the subsequent reactions are very important. रॉड और कोन से बाइपोलर और गैंग्लियन सेल तक कैसे ट्रांसमिशन होगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन था जो लास्ट लेक्चर में मैंने ये नहीं इमेज ये किया था। आई जस्ट मॉडिफाइड दिस इमेज, दिस इज द क्लैरिफिकेशन। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन इन रॉड एंड कोन इज सेम। रॉड में जैसे ये सब चेंजेस होंगे, मेटारोडॉक्सिन ये वगैरह, तो इतना ही है कि कोन्स के अंदर जो फोटोकेमिकल पिगमेंट है वो फोटॉप्सिन है। इंस्टेड ऑफ रोडोप्सिन देयर इज फोटॉप्सिन। ऑप्सिन इज द प्रोटीन पार्ट which is reacting with vitamin A, the retinal part. So opsin is there. So the photopsin, this is important, that 3 प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो उसी तरह से हमारे पास 3 तरह के कोन है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि ये सभी कलर्स को यदि हम प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करें तो हमको हर एक टाइप का कलर मिल जाएगा। सो if you, let's say if you mix red and green, you will have orange. If the green amount is more, it goes towards yellow. So this type of thing is there, that उसी तरह विजन में कैसे होगा, जैसे कि ऑरेंज कलर यदि हमारे सामने है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ रॉड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रीन कोन्स आर गेटिंग स्टिम्युलेटेड। If there is an orange image in front of us, then equal amount of green cones and equal amount of red cones will be stimulated, and the brain perceives it as that the color is orange. लेकिन है क्या कि ये 3 ही टाइप के कोन है हमारे पास। तो जो ब्लू कलर, जो सेंसिटिव ब्लू कोन्स के अंदर एक ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट है। Within the green cone there is green sensitive pigment, and within the red cone there is red sensitive pigment. The absorption as per the spectrometry is 445 nanometer for blue color, मतलब कि वेवलेंथ ब्लू कलर की ये है, और ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है ये 535, और रेड कलर का जो वेवलेंथ है 570, मीनिंग दैट द absorption is maximum. The absorption of light by this cone, red cone, is maximum at this intensity. So this is the peak absorption at a particular light wavelength. So you can see in this image, this is the blue cone, right? The absorption starts here, ends here, but the peak is at 435. Green cone, it is starting here and it is ending here, but the peak is at 535. और रेड का देखो यहाँ से शुरू होगा, पीक है 570 पे। तो ये वेवलेंथ आपको याद रखनी है केवल। बाकी जब भी फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन आता है क्वेश्चन, आपको केवल रॉड का एक्सप्लेन करना है, अनलेस एंड अनटिल द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक दैट फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन इन रॉड, और आई मीन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन इन कोन, बट नेवर सच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्योंकि बुक में सभी जगह पे, हर एक बुक में फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन इन रॉड ही लिखा है। तो आपको यही सब इमेजेस मैंने जो आगे बताए पिछले लेक्चर में, और वो जो कास्केड है वो आपको ड्रॉ करना है, राइट। एंड you can just mention that the photochemistry of vision in cones is also same, and there are 3 types of cones, and this is the peak absorption wavelength. That's it, nothing more, nothing less. See, the photochemical reaction in cones is similar, except that instead, see, they get stimulated by specific color. Specific color को वो stimulate हो जाते हैं।
The cones are, so this was the correction. The cones are less sensitive than the rods. कोन्स की सेंसिटिविटी लाइट के लिए कम है, ये याद रखना है. रॉड्स लाइट डिटेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल दी लोअर एनिमल्स लाइक द बर्ड्स, many birds, the feline animals, cats, dogs, and lot of other animals in the wild, they are nocturnal animals, right? They have nocturnal habits, meaning कि वो रात में शिकार करते हैं. Why? Because in them their vision is primarily adapted to dark. तो उनमें rods की density बहुत ज़्यादा है and they are able to detect light even when there is very in the darkest conditions. They don't have that developed cones like humans, क्योंकि cones visual acuity में और color perception में cones की अहमियत ज़्यादा है. Cones are more important to detect color and to interpret the image, the acuity, visual acuity, vision का sharpness बहुत ही important है. A lion won't be able to see as we see. लायन की या फिर और कोई एनिमल की जो इमेज विजन है वो हमारे जैसे डेवलप नहीं होगी. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ समथिंग रिगार्डिंग द लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन. अगेन अ शॉर्ट question or even a 1 mark question. What is dark adaptation or some question of that sort? What is this? So let us understand. We all know what is light and dark adaptation. You are in a movie theater. आप मूवी देख रहे हो, 3 घंटे की मूवी देखी, एकदम पिच ब्लैक था और सामने स्क्रीन पे मूवी प्रोजेक्ट हो रही थी. And after 3 hours you come out and you just like enter in the bright light. Immediately you won't be able to, there will be difficulty in looking around. Why? Because your retina was already dark adapted, तो लाइट को एडेप्ट करने में उसको दिक्कत होगी. So decrease sensitivity to light after prolonged light exposure. काफी लंबे समय तक dark adaptation increase the sensitivity to light after prolonged exposure to darkness. There is a prolonged dark exposure in a movie theater, and when you come out you are not able to, the light sensitivity is very high, so you have some difficulty. Similarly, bright sunlight में आप हो at around 12 pm, 12 mid noon, और आप बाद में तुरंत घर के अंदर आते हो, अंधेरे में आते हो, तो you will have some difficulty. So there is decreased sensitivity to light. Remember this word. Many students get confused. Dark adaptation means कि डार्क एडेप्टेशन में आपका एक्सपोजर डार्कनेस से हुआ है, आपको डार्कनेस का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हुआ है, इसी की वजह से आपकी सेंसिटिविटी जो है लाइट के लिए वो बढ़ गई. लाइट एडेप्टेशन में आप लाइट में एडेप्ट हो चुके हो, मतलब कि आप लाइट का आपको एक्सपोजर हो चुका है प्रोलॉन्ग, और उसकी वजह से जो है आपकी सेंसिटिविटी कम हो गई, विच इज बट ऑब्वियस. यू गेट एडेप्टेड टू एनीथिंग. सो see what is happening. Now I will explain you that photochemical reaction. Now understand that whenever there is light, rhodopsin is going to be broken down into meta-rhodopsin 2, and that is converted by the rhodopsin kinase into scotopsin and all trans-retinols. अब ये स्कोटॉप्सिन तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब तक ये ट्रांस रेटाइनल सिस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है और ये रेटाइनल सिस रेटाइनल स्कोटॉप्सिन के साथ कन्वर्ट होकर वापस रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तब तक ये रोडोप्सिन वापस अवेलेबल नहीं है फॉर द लाइट टू एक्ट. लाइट को दोबारा एक्ट करने के लिए, मतलब कि हमको ये मॉलिक्यूल जितना यूज होगा उतना हमको वापस चाहिए. द मोर रोडोप्सिन we are using, the more rhodopsin we are using or the light is using, the less is available. ये कम होता जाएगा, स्टॉक कम होता जाएगा, तो हमको स्टॉक को वापस बिल्ड करना है. We want more rhodopsin in the stock. तो more rhodopsin आएगा कहाँ से? नया तो हमको सिंथेसाइज तुरंत तो हम कर नहीं पाएंगे, राइट? So this scotopsin has to react with cis retinal, which will take minutes. इसको मिनट लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, 5, 10 whatever. और ये भी तभी हो पाएगा जब ये सिस रेटाइनल ट्रांस रेटाइनल ये आइसोमरेज एक्ट करेगा ट्रांस रेटाइनल पे और ये सिस बनेगा. तो दिस पोर्शन ऑफ द साइकिल,
this portion of the cycle is going to take some time. वो जो टाइम लेगा उसी का ये पूरा फिजियोलॉजी है एडेप्टेशन का. अभी फॉर एग्जांपल यू आर इन लाइट, यू आर एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट. आप दोपहर को 12-1 बजे कुछ बाहर से सनलाइट में काम करके घर के अंदर आ रहे हो और यू नो योर हाउस इज सच दैट देयर इज नो एडिक्वेट लाइटनिंग और अंधेरा है. What will happen? Because you have been exposed to bright sunlight, आप बाहर ब्राइट सनलाइट में घूम के आए हो तो काफी सारा जो लाइट है ऑलरेडी सभी रोडोप्सिन या फिर मान लो कि 90% 90% रोडोप्सिन हैज गॉट यूज और यू कैन से 99%. वेरी लेस रोडोप्सिन इज अवेलेबल एंड जितना रोडोप्सिन यूज हो गया है वो सभी स्कोटोप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल के फॉर्म में है. अभी यदि हमको अंधेरे में आप घर के अंदर आए हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यू आर नॉट एबल टू सी और परसीव एनीथिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट all the rhodopsin is used. So for light to act and for vision to occur, where is the rhodopsin? There is no rhodopsin. So what you will do, you will close your eyes for a while, फिर slowly over a couple of minutes, right, this thing will slowly, this is going to take time. So slowly rhodopsin will this synthesis will increase, synthesis from scotopsin and this retinal. तो जितना जितना नया rhodopsin बनता जाएगा, right, so then you will be able to open your eyes and you will be able to perceive better in darkness. आप अंधेरे में अच्छे से देख पाओगे. So this is the entire thing about the light adaptation. I said that prolonged light exposure हुआ है दोपहर को 12 बजे तो आप घर के अंदर आते हो, अंधेरा है तो आप लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. आपकी रेटिना की लाइट की सेंसिटिविटी कम हो गई है बिकॉज देयर इज नो रोडोप्सिन. सिमिलरली डार्क एडेप्टेशन मतलब आप अंधेरे में हो, मूवी थिएटर में या लेट्स से कि जस्ट अंधेरे में हो और आप अचानक से ब्राइट सनलाइट में निकलोगे तो अंधेरे में क्या होगा कि आपके पास इतना सारा रोडोप्सिन है. देयर इज लॉट ऑफ रोडोप्सिन, you have your retina is full of rhodopsin. So what will happen that rhodopsin थोड़ा भी होगा तो लाइट को पिकअप करेगा और यहाँ तो आपके पास इतना सारा rhodopsin है, you have lots and lots of rhodopsin in the rod outer segment that the sensitivity is very high. आपकी लाइट की सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाएगी. तो आप थोड़ा सा भी लाइट यदि डिटेक्ट कर पाते हो और आप यदि ब्राइट सनलाइट में आते हो तो वहां पे तो कितना लाइट है, तो यू विल बी यू हैव टू क्लोज योर आइज सो दैट द मोर अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इज डिक्रीज बिकॉज देयर इज मोर सेंसिटिविटी. So this is the long and short of this dark and light adaptation. I hope this is clear. Is this portion clear? You can reply me. I want the others to respond as well. Okay, so this seems to be okay. Now in your book, okay, in your book you can see this particular graph. ये ग्राफ आप देख पाओगे आपके बुक्स में, गाइटन में है, बाकी बुक्स में भी आई बिलीव इट इज गिवन. तो ये क्या है कि ये ग्राफ एक स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की है और उसके ऊपर से ये ग्राफ बनाया है कि व्हाट इज हैपनिंग. आप ब्राइट लाइट का आपको एक्सपोजर हो चुका है सनलाइट में और आप फिर अंदर घर के अंदर आते हो, अंधेरा है, ब्राइट लाइट से आप घर के अंदर आते हो, देयर इज पिच डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है. तो सेंसिटिविटी जो है कैसे बढ़ती है, तो रेटिनल सेंसिटिविटी बढ़ने का ग्राफ आप देख लो. ये देखो 1, 10, 100. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट विजन एंड ऑल दिस स्पेशल सेंसेस आपको लॉगरिथमिक स्केल ही यूज करना होगा. ये फिलहाल लॉगरिथमिक स्केल नहीं है. 1, 10, 100 आप देख सकते हो, इट इज रेज टू द पावर ऑफ n द सेंसिटिविटी. अब आप देखो कि मिनट्स इन डार्क, शुरुआत के कुछ मिनट्स में आप देख सकते हो 10 मिनट तक देखो आप एकदम ब्राइट लाइट के अंदर थे तो कोन के भी सभी पिगमेंट्स यूज हो चुके, रॉड के भी सभी पिगमेंट्स यूज हो चुके हैं. यू हैव बीन इन ब्राइट लाइट, रॉड पिगमेंट रोडोप्सिन इज ऑल्सो यूज्ड, फोटोप्सिन कोन पिगमेंट इज ऑल्सो यूज्ड.
नाउ यू एंटर इन डार्क, द सिंथेसिस और द रीसिंथेसिस विल स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है कोन जो है वो एडेप्ट हो जाएगा, मीनिंग दैट द फोटोप्सिन विल बी द फर्स्ट टू गेट रीसिंथेसाइज। विद इन 10 मिनट्स कोन का एडेप्टेशन हो जाएगा, और बाकी का जो हिस्सा है फ्रॉम 10 मिनट्स टू 40 मिनट्स, मतलब कि बाकी के आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हो कि तकरीबन 100 से लेके दिस 10,000 और इवन 1 लाख यहाँ तक रॉड का एडेप्टेशन है। इस ग्राफ से ये पता करना है बेसिकली, और या फिर ये इसका सिग्निफिकेंस है कि कोन का एडेप्टेशन फास्ट होता है, रीसिंथेसिस जो होता है फोटोप्सिन का, इट इज फास्टर इन कोन्स। Resynthesis of photochemical pigment is faster in cones because the reaction is fast. In rods it takes time. Rods में जो ये हम रिएक्शन की बात कर रहे थे, ये वाले हिस्से की, वो रॉड में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस पोर्शन, दिस इज द सिग्निफिकेंस। दूसरा ये कि ऐसा नहीं कि रॉड यहाँ पे एडेप्ट करना शुरू होगा, रॉड एडेप्टेशन विल स्टार्ट हियर, बट the cone adaptation is faster, so the rod adaptation is mass। और यहाँ पे cone adaptation हो गया, इसलिए यहाँ पे एक है जो एक नॉच आ गया ग्राफ में, और बाकी का हिस्सा जो है वो केवल रॉड है। so this is a notch, this is a graph in which is been produced under experimental conditions। so this is the significance that the cone adaptation is faster, that is it। The rod adaptation is slower। The second thing, the second inference is that rod adaptation has a bigger amplitude। रॉड का जो एडेप्टेशन है वो 100 से लेके 1 लाख तक जा रहा है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। मतलब कि हमारे पास ज्यादा, वैसे भी हमारे पास ज्यादा रॉड है, कोन्स हमारे पास जो रेटिना में वो कंपैरेटिवली कोन्स कम है, और ज्यादा कोन्स भी फोविया में ही है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। सी इनिशियल पार्ट ऑफ द डार्क एडेप्टेशन कर्व, दिस इज डार्क एडेप्टेशन कर्व। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये डार्क एडेप्टेशन का कर्व है, और वो कोन्स की वजह से है इनिशियल पार्ट। लेटर पार्ट मेजर ऑफ व्हाई रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफॉर्मेशन ऑफ द विजुअल ऑप्सिन, ये जो रिफॉर्म होते हैं, रीसिंथेसाइज होते हैं, वो कोन्स में 4 गुना फास्ट होता है, जो हमने देख लिया। लेकिन दिस reaction will occur to a greater magnitude in rods। मतलब कि रोडोप्सिन जो है वो ज्यादा अमाउंट है, रोडोप्सिन, more rhodopsin will be there, right? The reaction occurs to a greater magnitude in rods because there are more rods, so the reaction will be occurring to a greater magnitude। so this is one thing। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा रोडोप्सिन है, तो हम लाइट को रॉड से इजीली पिकअप कर पाएंगे, because we have rhodopsin in large amount, so the rod will be easily able to pick up light। this is especially true when there is dark condition। आपको डार्क, अंधेरे में देखना है, तो rod vision is more important, because rod is not important for visual acuity, but it is just important to detect light। second, rods are more present on the peripheral part of the retina। ये रेटाइना है, ये 3 डायमेंशनल मैंने दिखाने की ट्राई की है। दिस इज ओरा सेरेटा, लेट्स से दिस इज फोविया। तो कोन्स जो है सेंट्रल 20-30 डिग्री में सबसे ज्यादा है, और फोविया में बहुत ही ज्यादा है। बाकी के पेरिफेरल हिस्से में केवल और केवल बहुत ही ज्यादा रॉड्स है, कोन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो होगा ये कि अल्टीमेटली जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स है वो गैंग्लियन सेल्स बनाने वाले हैं। तो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स आर मेड बाय गैंग्लियन सेल्स। So what will happen that let's say in the peripheral part of the retina, right? You are, अभी आप अंधेरे में जा रहे हो, you are right now walking in a forest and there is dark, there is night condition। आप अंधेरे में फॉरेस्ट में जा रहे हो, जंगल में, तो अंधेरे में जो है आपकी जो थोड़ी सी भी लाइट आएगी, और यदि वो पेरिफेरल पोर्शन में गिरेगी, राइट, बिकॉज दिस इज द कप शेप रेटाइना, द लाइट इज यहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट कहीं से अगर पेरिफेरल पार्ट में जा गिरेगी, तो वो रॉड्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। और क्या है कि इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटाइना, द रेशियो ऑफ द कनेक्शन ऑफ द रॉड ऑन द कोन्स टू द गैंग्लियन सेल, उसमें ऐसा है कि पेरिफेरल हिस्से में 10 से 20 रॉड है जो एक गैंग्लियन के सेल के साथ कनेक्ट होते हैं। 10 to 20 रॉड आर कनेक्टिंग टू वन गैंग्लियन सेल, वेरेस कोन्स का ऐसा रेशियो है कि वो
5 कोन्स मिलके एक गैंग्लियन सेल पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है रेशियो, देर आर मोर रॉड्स कनेक्टेड टू वन गैंग्लियन सेल। So if any of those rod is able to detect one light photon, that will be passed to ganglion cell and that will be passed to your brain. So this was the explanation. What you just need to remember कि rod sensitive ज़्यादा है क्योंकि reaction उसमें ज़्यादा magnitude में हो रही है। दूसरा कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना में बहुत सारे रॉड एक गैंग्लियन सेल पे कन्वर्ज करेंगे, तो लाइट डिटेक्ट करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। These are two main reasons. There are other two mechanisms. दो और मैकेनिज्म है किस चीज के लिए, डार्क एडेप्टेशन के लिए। तो ये है कि अदर मैकेनिज्म फॉर लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन बोथ। सी द टू प्रीवियस मैकेनिज्म्स व्हिच आई सेड, जो लाइट और डार्क एडेप्टेशन के लिए जो पहले की दो जो मैकेनिज्म मैंने बताई अभी जो हमने बात की, वो दैट विल टेक फ्यू मिनट्स, but this will take few seconds or fraction of second। सबसे पहले कि जब आप अंधेरे में होते हो तो pupil की साइज बढ़ जाएगी। If the pupil size is increasing, okay, now can anyone tell me why the pupil size increases in dark conditions? Well, I have already written the answer, so but still I'll want to just why the pupil size decreases in light, that you can answer. Why pupil size decreases in light? Okay, so Rehan has answered that more light can enter the eye for proper viewing, that is in dark, and obviously the answer for light is that in light conditions to reduce the amount of light. Good. So ये एक है दोनों के बीच में। अभी आप ये याद रखो, between light and dark, between maximum light and maximum dark, the pupil size, the amount of light can change 30 times. Sorry, between complete pupilloconstriction and complete pupillodilation. Complete pupilloconstriction clinically is 1 millimeter and complete pupillodilation clinically is 7 to 8 millimeter। तो वो 1 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर के अंदर लाइट जो अंदर जा रही है वो 30 टाइम्स चेंज हो जाएगी अमाउंट ऑफ लाइट। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, न्यूरल एडेप्टेशन। ऐसा है कि जब भी लाइट इंटेंसिटी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे तो बाइपोलर सेल्स जो सभी रेटिना के सेल्स है वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन कंटिन्यूड अगर यदि आप लाइट में रहते हो तो एडेप्टेशन हो जाता है। इसको लाइट एडेप्टेशन बोलते हैं क्योंकि सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो सिग्नल ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। सो व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट द सिग्नल ट्रांसमिशन इज इंटेंस, लेटर द सिग्नल ट्रांसमिशन विल डिक्रीज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये चार मैकेनिज्म है। कैन यू रिपीट द स्लाइड ऑफ व्हाई रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट? ओके, so why rods are more sensitive to light? Fine. The first thing is that, see, this entire photochemical reaction, this entire photochemical reaction, you know, compared to rod and cones, it is slower in rods. But the most important thing is that we have lot many rods compared to cones. हमारे पास बहुत ही ज़्यादा rods है compared to cones, and the reaction occurs to a greater magnitude, meaning that there is more amount of rhodopsin which is available. If we talk about the entire retina, there is more rhodopsin compared to photopsin, right? You can see this graph that there is this, यहाँ पे सेंसिटिविटी केवल 100 तक है कोन के लिए, लेकिन यहाँ पे 100 से लेके तकरीबन 1 लाख तक है रॉड्स के लिए। So you can say that there are more rods compared to cones, and the reaction is occurring to a greater magnitude in rods. So there is more rhodopsin, and the more the rhodopsin, it is easy able to pick up the light. Second is that in the peripheral parts of the retina, more number of rods are converging on one ganglion cell. So
even if there is a very scarce light, even if there are a few photons of light, the rod will be able to pick up. So these are the only two reasons which is important to study. आपको केवल यही याद रखना है कि कोन्स की सेंसिटिविटी कम है लेकिन रिएक्शन उसमें बहुत ही फास्ट होगा. Still, if you have doubt, just go through this particular graph and just go through this particular section. Then you can ask me in on my number. You can just ask me in the message. I shall help you in the doubt. Now, the color sensitive pigment of cones is a combination of retinal and photopsin. Photopsin is only slightly different from rhodopsin. Again, we saw this graph. Now the remaining part of the lecture is there, which is very important. Right now, on your screen, what you can see is the pigment epithelium, the photoreceptors, the bipolar cells, the ganglion cells. ये आपको याद रखना है कि वर्टिकली ये तीन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर एंड गैंग्लियन. Photoreceptor, this is cone, photoreceptor, bipolar cells and ganglion cells. Horizontally, these are horizontal cells and amacrine cells. Okay, so horizontal cells are in which layer? Horizontal cells and amacrine cells are in which layer? No, not outer nuclear. Horizontal cells का बताओ पहले. Okay, horizontal cells in the outer plexiform. Outer plexiform. And amacrine cells? Horizontal in outer plexiform and amacrine in the inner plexiform. So that is good. Horizontal in the outer plexiform and amacrine in inner plexiform. ये याद रखना है. What is the work they are doing? क्या काम करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल सेल्स आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में जहाँ की वो साइनेप्स बनाएगा रॉड, कोन्स और बाइपोलर सेल्स. देखो ये बहुत ही अलग तरह का साइनेप्स है. यहाँ पे तीन न्यूरॉन्स इकट्ठे होंगे, रॉड और कोन, व्हाटएवर, कोन्स, बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स. तीनों के ये जो रॉड का जो साइनेप्टिक बॉडी है, बाइपोलर सेल्स का ये यहाँ पे ये एक्सोनल एंडिंग है और हॉरिजॉन्टल सेल्स, तीनों का मिलके एक साइनेप्स बनेगा. उसको साइनेप्टिक रिबन बोलते हैं. इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ साइनेप्स एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड साइनेप्स एटलीस्ट इन सीएनएस. सो दिस पर्टिकुलर जो है, ये आपको ये पास में ये डायग्राम इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो कि ये हॉरिजॉन्टल सेल जो है ये हॉरिजॉन्टली सभी सेल्स को कनेक्ट करेगा. कोन्स को, अगल बगल के कोन्स को, फिर बाइपोलर सेल्स को भी थोड़ा कनेक्ट करेगा. और इट इज डूइंग द वर्क ऑफ लैटरल इनहिबिशन. व्हाट इट इज डूइंग? इट इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इम्पल्सिस. जो इम्पल्सिस का स्प्रेड जो होगा लैटरली वो प्रिवेंट करेगा. amacrine cells will do the work of lateral inhibition in case of inner plexiform layer. It is connecting bipolar cells and ganglion cells. The other important thing which is most important और आपको ध्यान देना है कि foveal region के अंदर, in the region of fovea, there are only cones. In the outer periphery, in the outer retina, in the peripheral retina, there are both rod and cones, but the rods are more in number. Cones are connected to ganglion cells directly. मैं ये बोल रहा हूँ, आप ध्यान में रखो, वाइवा में पूछते. दिस इज द डायरेक्ट पाथवे. डायरेक्ट पाथवे मतलब कि कोन्स कनेक्टेड टू बाइपोलर सेल्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू गैंग्लियन सेल्स. इन केस ऑफ रॉड, आप इसी डायग्राम में देख लो, दीज आर रॉड, दे आर कनेक्टेड टू बाइपोलर सेल्स बट दे आर नेवर कनेक्टेड टू द गैंग्लियन सेल्स डायरेक्टली. दे आर कनेक्टेड टू गैंग्लियन सेल्स ओनली बाय amacrine cells. दिस इज इनडायरेक्ट पाथवे. ये डायरेक्ट पाथवे है. कोन्स कनेक्टेड टू बाइपोलर, कनेक्टेड टू गैंग्लियन, रॉड connected to bipolar, connected to
this particular amacrine and connected to ganglion. This is indirect transmission और indirect pathway. ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैं ये डायग्राम दिखा रहा था. This is the same thing I explained you. I'll just again explain, recapitulate this to you. Under dark condition, rods are at resting state because of leaky sodium channels. The potential is minus 40 millivolt. Minus 40 millivolt से the glutamate amount released is this much. There is some glutamate released. Under resting state, under dark condition, there is some glutamate continuously released. When there is light, जब भी light condition होती है, तो sodium channels close and hyperpolarization occurs. And as the hyperpolarization starts occurring, glutamate release will decrease. So this is complete light. The potential is minus 70, no glutamate. With the increasing light from black condition, जैसे जैसे थोड़ा लाइट बढ़ेगा, minus 40 का minus 50 होगा, तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लूटामेट कम होगा थोड़ा. फिर you can say minus 60. This is more amount of light compared to black, more hyperpolarization, less glutamate. minus 65 पे और ज़्यादा कम ग्लूटामेट, और यहाँ पे देख सकते हो तो minus 70 पे there is no glutamate. So now there are a couple of things which I want to explain. That is how the signals are transmitted from rod and cone. रॉड और कोन से आगे सिग्नल कैसे ट्रांसमिशन होता है वो हमको देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, light photons. Now I am talking about cones. There are light photons. This leads to hyperpolarization. Hyperpolarization की वजह से ग्लूटामेट रिलीज कम होगी. ग्लूटामेट रिलीज कम होगी तो दो टाइप के बाइपोलर सेल्स होते हैं और दो टाइप के रिस्पॉन्सेस मिलेंगे. आई एम गोइंग टू जस्ट at this point I have arrived two types of bipolar cells. So now I am going to change the slide. Now just यहाँ पे एक चीज देख लो. I am going to read this slide one by one. I am going to read the sentence. In the entire retina, even after the photoreceptor cells have transfused. ये जो हम बात कर रहे थे वो फोटो ट्रांसडक्शन था. ये पूरे रेटाइना में फोटो ट्रांसडक्शन होने के बाद भी जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा आगे, वो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल के फॉर्म में होगा, एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं. हमने अब तक सेंसरी सिस्टम में ये देखा कि जो भी पेसिलियन कॉर्पसल या मीजनर या मर्कल डिस्क होता है वो इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन तुरंत ही उसके बाद जो भी एफरेंट नर्व टर्मिनल है वहां पे फर्स्ट नोड ऑफ रेनवायर पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा. So immediately the receptor potential is converted into action potential. But here, even after this electrotonic potential, जैसे मैंने बताया कि रॉड हाइपरपोलराइज हो गया, वो उसका इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल था, लेकिन उसके बाद ग्लूटामेट रिलीज वगैरह हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी बाइपोलर सेल्स में है, बाइपोलर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होंगे. There is photoreceptors are rods and cones and they are synapsing with bipolar cells. But bipolar cells will not generate action potential. In fact, bipolar cells are connected to the ganglion cells, and the ganglion cells are the cells which are going to generate action potential in their axons. So this is a major exception in the sensory system, that in the phototransduction process, the subsequent signals are transmitted in the form of electrotonic potential and not as action potential. Action potentials are generated only in the ganglion cells, which are carried by way of their axons, which are the optic nerve fibers. The primary function, see, what is the difference between action potential and electrotonic potential, that you already are aware. Now, why do we need action potential? Electrotonic potential action potential का काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन दिखाता है और इसी की वजह से वो रैपिड इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करेगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. हाउएवर इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन इज नॉट गोइंग टू हैव सॉल्टेटरी कंडक्शन, राइट? सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. और रेटाइना जो है हमारा, रेटाइना थोड़ा थिक है कि इसमें एक फोटोरिसेप्टर से, बाइपोलर सेल से, गैंग्लियन सेल से,
अब जब गैंग्लियन सेल में जाके एक्शन पोटेंशियल बनेंगे तो बीच वाले जो हिस्से में मतलब कि फोटोरिसेप्टर से बाइपोलर सेल्स और बाइपोलर सेल्स से गैंग्लियन सेल्स में जो भी ट्रांसमिशन होगा वो इलेक्ट्रोटोनिक ट्रांसमिशन होगा, पैसिव ट्रांसमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन. इज दिस क्लियर? Is this concept clear? Because more difficult thing is going to come. Okay, so the difficult part is now going to come. The thing is that neurotransmitter released by rods and cones are glutamate. The importance of electrotonic conduction is that there is a graded conduction of signal strength. जितना स्टिमुलस है उतना ही पोटेंशियल बनेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देख चुके सेंसरी ट्रांसमिशन में रिसेप्टर्स के टॉपिक के समय. रॉड एंड कोन, thus for the rod and cone the strength of the hyperpolarizing output signal, मतलब कि कितना hyperpolarizing signal जनरेट हुआ, that will be directly dependent on the intensity of illumination. The signal is not all or none law. वो तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल जो है वो ऑल और नन लॉ फॉलो नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन लॉ फॉलो करता है. ये मैंने आपको बार बार बोला है कि ये डिफरेंस आप मगअप कर लेना. दिस इज आर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द सेंसरी डीकोडिंग इन केस ऑफ विजन, जो भी सेंसरी डीकोडिंग है विजन के लिए वो रेटिना में ही शुरू हो जाता है. पेन, टच या फिर हम और सेंसेस की बात करें, टेम्परेचर, तो उसमें डीकोडिंग जो है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर लेवल पे नहीं हो रहा था, वो सीधा कॉर्टेक्स में जाके वो एक्शन पोटेंशियल जो है उसका फ्रीक्वेंसी वगैरह हमको पता चलता था कि इतना ज्यादा है इतना कम है. बट इन केस ऑफ रेटिना द सेंसरी डीकोडिंग इज स्टार्टिंग इन द रेटिना ओनली because of this electrotonic transmission. I will be explaining you how that occurs. Now for vision what is the most important thing, हमको अच्छे से देखने के लिए एक ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर हमको दिख जाए, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है वहाँ पे हमको कॉन्ट्रास्ट दिख जाए. You can just see, you can for a moment you can just stop looking at your mobile screens and you can just see outside the window, outside the people around you, the scenery around you. You can see that there are always like borders and you know contrasting zones. कहीं पे line है, कहीं पे tree है. So this it is very important that you recognize the border and the contrast. Otherwise you everything is homogeneous. आपके सामने सभी कुछ plain है, homogeneous होगा. लेकिन क्योंकि आप बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट को एप्रिशिएट कर रहे हो कर पाओगे तो ये विजुअल एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंस है ये. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. नाउ आफ्टर द इनिशियल फोटो ट्रांसडक्शन एज द सिग्नल्स आर कैरिड फर्दर, दिस इज इम्पोर्टेंट. फोटो ट्रांसडक्शन होने के बाद जब भी सिग्नल्स आगे जाएंगे बाइपोलर सेल्स में और फिर गैंग्लियन सेल्स में, तो विजुअल सीन मतलब कि आपका विजुअल फील्ड का डिकोडिंग शुरू हो जाएगा ताकि थोड़ा प्री प्रोसेसिंग हो जाए और वही प्री प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच सके. तो thus if bipolar cells, now this is important, यदि बाइपोलर सेल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो जो प्री प्रोसेसिंग है विजुअल इंफॉर्मेशन का वो नहीं हो पाएगा और जो लैटरल इनहिबिशन का प्रोसेस है वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा. द वर्ड इंपॉर्टेंट इज एफिशिएंट. सी लैटरल इनहिबिशन इज अकरिंग इन अदर सेंसरी सिस्टम्स एज वेल. वहां पे एक्शन पोटेंशियल का ही वो लैटरल इनहिबिशन वगैरह करेगा. बट बाइपोलर सेल्स का ये जो मैं पूरा इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन का समझा रहा हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैटरल इनहिबिशन इज इन द आउटर एंड द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. सो वो वही दोनों जगह पे बाइपोलर सेल के ही साइनेप्सिस आते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाइपोलर सेल्स में भी इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल हो ताकि लैटरल इनहिबिशन एफिशिएंट हो. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट अस गो फर्दर दैट हाउ मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स. तो एक तो फोटो रिसेप्टर्स देख लिए हमने और बाद में आएंगे हॉरिजॉन्टल सेल्स जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेंगे.
फिर आएंगे बाइपोलर सेल्स। आई एम नॉट रीडिंग इट वर्बेटिम, आप सबको पता ही है बाइपोलर सेल्स आएंगे। बाइपोलर सेल्स फिर जाके गैंग्लियन सेल्स आएंगे और बीच में एमाक्राइन सेल्स है जो हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेंगे। तो ये सभी सेल टाइप्स है, ये 5 सेल टाइप है आपको याद रखने, फोटो रिसेप्टर, हॉरिजॉन्टल सेल, बाइपोलर सेल, एमाक्राइन सेल एंड गैंग्लियन सेल। और एक 6th टाइप है गाइटन में मेंशन किया है कि इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल है। केवल नाम याद रखो, क्या काम करता है कि वो रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में, मतलब कि इनर से आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में कुछ साइनेप्टिक वो फंक्शन करता है। यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट, दैट्स फाइन। तो 5 टाइप के सेल्स है, 5 प्रकार के सेल्स है। और ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्ट पाथवे है, कोन का पाथवे जो है विजन का डायरेक्ट है, रॉड का जो पाथवे विजन का वो इनडायरेक्ट है। So the direct pathway, cone pathway is especially important in fovea, ये foveal region है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि फोटो ट्रांसडक्शन होने के बाद जब फोटो रिसेप्टर बाइपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स करेगा, यहाँ पे मैं कोन की बात करूंगा। फोटो रिसेप्टर जब बाइपोलर सेल्स, कोन बाइपोलर सेल के साथ साइनेप्स करता है तो 2 टाइप के बाइपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स करेगा। तो वो 2 टाइप के बाइपोलर सेल्स कौन से हैं, तो वो अब हम देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइपोलर सेल्स, वन इज डीपोलराइजिंग, वन इज हाइपरपोलराइजिंग। सो depolarizing and hyperpolarizing, these 2 types of bipolar cells are there. What you need to understand is that the glutamate which is released by the cones and the rods, right? I am talking about cones. So the glutamate which is released by cones will have different effect on these 2 cells. 2 तरह के बाइपोलर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, उनके रिसेप्टर की जो रिसेप्टर का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है उनके पास कि सेम ग्लूटामेट दोनों पे अलग अलग इफेक्ट करेगा। एक में जब भी ग्लूटामेट रिलीज होगा तब वो डीपोलराइज हो जाएगा, और एक में जब भी ग्लूटामेट रिलीज होगा तब वो हाइपरपोलराइज हो जाएगा। तो जो डीपोलराइजिंग सेल है उसको ऑन सेंटर बोलेंगे, ये मैं टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा अभी। हाइपरपोलराइजिंग को ऑफ सेंटर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आफ्टर दिस स्लाइड आई विल I will break this session and I will restart, but only after 5 to 6 minutes. तो अभी 5-6 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस करो, बाद में मैं आपको ब्रेक दूंगा। ये वाले डायग्राम पे फोकस करो। सी और दिस इज लेट्स से ये रेड कोन है, ये एक रेड कोन है, मतलब कि ये कोन जो है वो रेड कलर डिटरमाइन करता है, और ये है उसका इमेज जो उसके सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। दिस इज द इमेज विच इज प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कोन। When this bright red spot is there, this bright red spot is falling on this, light is falling on this cone, then what will happen, the cone will hyperpolarize। cone hyperpolarize होगा तो ग्लूटामेट का रिलीज कम हो जाएगा। तो वो कम जो ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ये एक पर्टिकुलर कोन 2 टाइप के सेल्स के साथ साइनेप्स करेगा, ये ऑन सेंटर, ऑफ सेंटर। ऑन सेंटर मतलब क्या, ऑन सेंटर मीन्स दिस कोन, इसका रिसेप्टिव फील्ड ये है, ये कोन का रिसेप्टिव फील्ड या इससे थोड़ा बड़ा होगा। तब जब ये कोन का रिसेप्टिव फील्ड है, तो जब भी इस रिसेप्टिव फील्ड पे लाइट होगी तो ये सेल फायर करेगा। जब इस रिसेप्टिव फील्ड पे लाइट नहीं होगी, मतलब कि जब ये ब्लैक होगा, तब ये वाला फायर करेगा। इज इट क्लियर? I believe there will be doubts. If it is no, then just let me, because this concept is important to understand. Oh, good. That okay. So I shall repeat this. Yes, I will repeat it. देखो, मैं एक और डायग्राम बता रहा हूँ आपको। पहले ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर कोन है, रेड कोन है, जो रेड कलर डिटेक्ट करता है। हमारे पास 3 टाइप के कोन है, मैंने आपको बताया। तो ये जो कोन है वो रेड कलर को डिटरमाइन करता है। ये पर्टिकुलर है उसका रिसेप्टिव फील्ड है, राइट। तो उस रिसेप्टिव फील्ड में जब भी रेड कलर होगा, राइट, जब भी मतलब रेड लाइट होंगी, तो
ये वाला जो बाइपोलर सेल है जहाँ पे ये मेरा कर्सर पॉइंटर मूव करेगा, ये वाला जो बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा। जब यहाँ पे ब्लैक लाइट होगी, मतलब कि लाइट नहीं है, ब्लैक लाइट मीन्स ब्लैक कलर मीन्स देयर इज नो लाइट, ब्लैक कलर मीन्स देयर इज नो लाइट, एट दैट टाइम दिस बाइपोलर सेल विल डीपोलराइज। ऑन मतलब क्या, ऑन सेंटर मतलब उसका सेंटर ऑन है, मतलब कि उसके सेंटर पे ये कोन के जो रिसेप्टिव फील्ड है वहां पे लाइट, उसकी लाइट है। ऑफ सेंटर मतलब कि वहां पे लाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका रिसेप्टिव फील्ड, राइट, आप देख सकते हो। तो ये उसका जो रिसेप्टिव फील्ड का सेंटर है, तो यहाँ पे जब भी लाइट गिरेगी, राइट, तो ये जो ऑन सेंटर जो बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा। दिस इज ब्लैक मीनिंग दैट देयर इज, यहाँ पे देयर इज नो लाइट। तो जो ऑफ सेंटर बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा। अगेन देयर इज नो लाइट, अगेन देयर इज नो लाइट, तो जो ऑफ सेंटर बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा। मीनिंग दैट रिसेप्टिव फील्ड में यदि जब भी लाइट है उसके लिए उसकी स्पेसिफिक उसकी लाइट है, तो ऑन है मतलब कि उसका सेंटर ऑन है, ऐसा समझ लो कि उसका सेंटर ऑन है। सो दिस पर्टिकुलर बाइपोलर सेल विल गेट डीपोलराइज। जब भी लाइट नहीं है मतलब कि ब्लैक लाइट है, तभी ये वाला सेल जो है ऑफ सेंटर, ऑफ मतलब उसका सेंटर ऑफ है, वहां पे लाइट नहीं है या फिर डार्क है, तो ये वाला डीपोलराइज होगा। देखो अभी ब्रेक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सेंसरी सिस्टम में हमारे पास ये था कि जैसे पैसेंजर कॉर्पसल वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है, तो पैसेंजर कॉर्पसल सीधा एक एफरेंट नर्व टर्मिनल के साथ साइनेप्स करेगा और वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। मतलब कि वाइब्रेशन है तब भी उसी एक्सॉन के अंदर साइनेप्स इंपल्सेस जाएंगे, वाइब्रेशन कम होंगे, राइट, वाइब्रेशन कम होंगे तब भी उसी के अंदर जाएंगे इंपल्सेस। आप ये मैं जो कॉन्ट्रास्ट दिया है, जो आप मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ वो समझिए कि इन दी अदर सेंसरी सिस्टम्स the things are occurring differently. There is a single pathway. If something is there or something is not, there is a single pathway. उसी सिंगल पाथवे में एक्शन पोटेंशियल या फिर ज्यादा होंगी या फिर कम होंगे, उसके हिसाब से पता चलेगा। लेकिन विजन के लिए थोड़ा एक्सेप्शन है। विजन के लिए कुछ होना और कुछ नहीं होना वो दो अलग अलग से ट्रांसमिट हो गए। यदि कुछ है तो इससे ट्रांसमिशन होगा, यदि कुछ नहीं है तो उसके लिए अलग से ट्रांसमिशन होगा। इज दिस नाउ क्लियर? इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? The exception is for vision. If there is something, then there is a different pathway, there is a different channel. If there is something, if nothing is there, यदि वहां पे नहीं है तो उसके लिए अलग से ट्रांसमिशन है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर नाउ आई शैल ब्रेक फॉर 10 minutes. We shall be back after 10 minutes. So I am going to end the meeting here. You can relog in the next session. So let us break. Thank you all.